ٹو لا، اور ہمارے ساتھ ہیں جنگ بار کے نہایت مائع ناز اور بہت ہی عظیم، بہت ہی اچھے لیڈر اور پولیٹیشین آف دا بار جناب محمد حسنین سیال صاحب، حسنین ساجد سیال صاحب. آپ نہ صرف ایک لائر ہیں بلکہ آپ کی خدمات ایک اور طرح سے بھی بہت ہی قابل ستائش ہیں، اور وہ یہ کہ آپ بہت اچھے رائٹر ہیں. آپ لکھتے ہیں اور لکھ کے اپنے قلم کے ذریعے علم کی روشنی ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو آج آپ سے بہت مشکل سے وقت ملا، آپ بہت مصروف تھے، مگر ہم نے بھی اپنی مجبوری دکھائی اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، اور بہت شکریہ، نہایت شکر گزار ہیں سر، آپ نے وقت دیا. تو آج سر آپ سے چند منٹ لیں گے جی. تو کسی بھی انٹرویو میں سوال پہلا یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ نے پروفیشن آف لا، آپ کا چونکہ پروفیشن لا ہے، تو آپ نے لا کا پروفیشن کب سے سٹارٹ کیا؟ یہ میں اس جنگ بار میں 1975 اگست 1975 سے میری انرولمنٹ ہے، اور 85 میں جنگ میں بار پریزیڈنٹ تھا. اور دنیاوی اور دینی جو سیاست ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی. ماشاء اللہ. اور اب میں نے 92 تک میں کیسز فوجداری اور دیوانی کے وہ کرتا تھا. ماشاء اللہ. لیکن لیکن اس کے بعد جب قرآن کریم کا میں نے مطالعہ کیا تو اس میں ایک آیت ہے، حضور پاک کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ اے پیغمبر تم خائنوں کے وکیل مت بنو. اس کے بعد میں نے وکالت چھوڑ دی، اور اب میں جو وکالت اس وقت کر رہا ہوں وہ میں صرف مزدوروں کی، محنت کشوں کی، غریبوں کی وہ میں وکالت کرتا ہوں، لیبر لاز کی، سول سروس، یہ میرا. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ جو دینی تعلیم ہے، دینی میری افکار جو ہیں اس پر بھی میں ورک کر رہا ہوں. اور کافی عرصے سے میں نے کتاب پہلے لکھی تھی، کیا اسلام دین ہے یا مذہب. ماشاء اللہ. وہ اس کے بعد یہ ایک میں نے اور دعوت تفکر فی الدین یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور اس کو پرنٹ کروایا. میں فری آف کاسٹ یہ بکس دیتا ہوں، اور لوگوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہمارا دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے. تو یہ میں تمام وکلاء کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، کیونکہ وکلاء ایک ایسا طبقہ ہے، پڑھا لکھا لوگ ہیں. اگر ان میں اتحاد ہو جائے، اگر یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دین ہے، مذہب نہیں ہے، کوئی فرقہ ہمارا نہیں ہے، تو ہم اس دین کے نفاذ کے لیے ہم اگر کوشش کریں تو مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں. سر ایک انٹرپشن کر رہا ہوں کہ مطلب ایسا کون سا لائف میں موڑ آیا کہ آپ پہلے پولیٹیشین بھی رہے اور بڑے زبردست اور دبنگ قسم کے لائر بھی رہے، کرمنل لائر تھے آپ، تو آپ ایک دم سے کنورٹ ہو کے تو مطلب ایک ادر کارنر آف دا روم آپ چلے گئے، مطلب اس کارنر سے اس کارنر کی طرف. یہ میں اس کا جواب یہی دوں گا کہ میں پہلے گمراہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حبیب کے صدقے مجھے راہ راست دکھایا، مجھے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا. میں نے جب قرآن کریم میں بڑا غور سے مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم تو گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ 1400 سال سے ہم فرقہ وریت میں پروان چڑھے ہیں. تو چونکہ قرآن کریم میں نے جو اس کتاب میں لکھا ہے 71 ٹائم جو ہے لفظ دین آیا قرآن کریم میں، اس میں کہیں مذہب کا ذکر نہیں ہے، صرف دین. اور دین جو ہے، اب جب دین ہے تو پھر مجھے مذہب کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اسی پہ میں کام کر رہا ہوں. دین کا جو مختصر سا میں بتاتا ہوں. دین جو ہے یہ 4 عناصر پر مشتمل ہے. بھیجنے والا، لے آنے والا، جو چیز بھیجی گئی اور جس ہستی نے وصول کی، یہ 4 ہی چیزیں ہوں گی. اللہ بھیجنے والا ہے، جبرائیل علیہ السلام لے آنے والے ہیں، اور کتب سماوات بھیجی گئی اور جن پر بھیجی گئی وہ رسول وقت ہے. تو یہ 4 چیزیں اگر ہوں گی تو وہ دین ہوگا، ادروائز وہ
कुफ्र का फ़िरका होगा, वो मज़हब होगा, जो कुछ भी है। हाँ जी, तो हम इस दीन का प्रचार कर रहा हूँ मैं कि हमें दीन पे चलना चाहिए, दीन के अहकामात। और कुरान करीम जो है ना, ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। और इसमें हर मुसलमान का, ये किसी एक ख़ास तबके का नहीं है कि ये पूरी आलम जो बशरियत है और आलम हमारे मुसलमान है, उम्मत मुस्लिमा है, तो हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस दीन का प्रचार करें, अपने आप को कोई फ़िरका किसी का नाम न दें, क्योंकि कुरान करीम में कहीं फ़िरके का जिक्र नहीं है और तमाम अहादीस में कहीं भी फ़िरके का जिक्र नहीं है। वाह वाह। बल्कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीन का प्रचार करने के लिए आए थे, दीन का प्रचार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया। हाँ जी, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि बुकलात हज़रात ख़ुद भी कुरान करीम पढ़ें और उसका तर्जमे के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन उस पर अमल पैरा हों। यही हमारी ज़िंदगी का एक मिशन होना चाहिए। ज़बरदस्त। तो ये इस पर मैं दावत फ़िक्र लोगों को दे रहा हूँ। नाज़रीन तमाम इंसानों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि तमाम इंसानों को आपस में जुड़ के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमामिल में हिस्सा लेना चाहिए। और यकीनन वो जो हम पढ़ा करते थे ना कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यस यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। ये आप और मैं जो बातें सुन रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी उसी वो यूनिटी का एक हिस्सा है, यूनिटी के ज़रिए है। अगर आप कोऑपरेट न करें, बल्कि यूँ कहिए कि ये मशीन्स, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, इनके पुर्जे, इनके पार्ट्स अगर आपस में कोऑपरेट न करें तो ये चल नहीं सकती। तो ये तो ज़िंदगी है सरकार, ज़िंदगी कैसे चलेगी अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे। और कहारियो, जब्बारियो, कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। तो आइए साहब, इसी की तरफ हम तवज्जो करें और हमें करनी होगी, क्योंकि ये वक्त है। अगर हम इस वक्त भी अपने आप को नहीं पहचानेंगे और अपनी लाइफ को सही बेहतर सख्त में नहीं ले जाएंगे तो यकीनन हम और ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार होंगे। आप देख रहे हैं जनाब चैनल टू लॉ, और ये टू लॉ है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, ठीक है। और इंशाल्लाह मज़ीद भी बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने आएंगी। जो भी वीडियो आप देखिए उस पर कमेंट्स कीजिए और उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक बात में और मैं जो रह गई थी, आपने पूछा कि ये कैसे तब्दीली आई सर, प्लीज़। तो उसका मैं मुख्तसर ये जवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात का ज़र्रे ज़र्रे का पैमाना मुकर्रर किया। बिल्कुल। ज़मीन व आसमान और जो कुछ भी कायनात के अंदर मौजूद है, उसका अल्लाह ताला ने एक पैमाना मुकर्रर कर रखा है। बिल्कुल। वो अपने उस पैमाने से इधर उधर नहीं हो सकते, वरना सारा निज़ाम गरम बरम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की शान रुबूबियत आप देखें कि उसने इंसानी किरदार का कोई पैमाना नहीं बनाया। वाह वाह वाह, अच्छा जी। बिल्कुल, इंसानी किरदार का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए कि एक इंसान जो है किसी वक्त वो बुराई में नंबर 1 होता है, अगर उसको अल्लाह ताला हिदायत दे तो वो सबसे बहुत नेकोकार शख्स बन जाता है। ये इंसानी किरदार को अल्लाह ताला ने इसका कोई पैमाना नहीं बनाया। तो मैं तो ये करता हूँ कि मैंने जब इस कुरान करीम, मुझे लोग पूछते हैं कि जी आपने ये कहाँ से, मैं किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुआ कि दीनी तालीम लेने के लिए। मैं उनको ये बताता हूँ कि मैं बराह रास्त यूनिवर्सिटी ऑफ मुस्तफ़ा में मैंने दाखिला लिया, और जो कुछ मैंने दीन के बारे में, मज़हब के बारे में या ये दूसरी जो है उनके बारे में जब मैंने कुरान करीम से इल्म हासिल किया, तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुस्तफ़ा है ये हर घर में मौजूद है। बिल्कुल, हर घर में कुरान करीम है। और अगर आप हम सब मिलकर कुरान करीम का बगौर मुताला करें तो हम एक अच्छे मुसलमान भी बन सकते हैं, और इस दीन का नफाज जो है वो हम अपने इस मुल्क पर भी कर सकते हैं, क्योंकि दीन मुस्तफ़ा के लिए ये मुल्क बना था। बिल्कुल। जो जिसने ख्वाब देखा था वो भी एक वकील था, जिसने प्रैक्टिकली स्ट्रगल की वो भी एक
वकील थे, हैं जी। और आज भी वकील, मैं एक वकीलों को अक्सर ये कहता हूँ कि वकील जो है ना वो मिसले अबाबील हैं। वाह वाह वाह। जैसे अबाबील का जो लिबास है ना वो उसके सीना उसका सफ़ेद होता है, बाकी उसका काला रंग होता है। हमारा जो हम बुखला हैं हमारा भी यही है, हम सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, ऊपर से काला कोट पहनते हैं, मिसले अबाबील हैं। अबाबील का कुरान करीम में ज़िक्र है, सूरह फील में आया है जी। वो छोटे से परिंदे ने बहुत बड़े जंगजू हाथियों को भूसा बना दिया था। आप इकट्ठे हुए और आपने इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवा लिया। आप इकट्ठे होंगे, आप अगर इकट्ठे होंगे तो ये दीन इस्लाम का नफाज इस मुल्क में हो जाएगा। और मेरी तो ख्वाहिश और मेरी जिद्दोजहद यही है कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो और इस कुरान करीम की हुकूमत हो, हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी, ये मेरी कोशिश है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रीशियस टाइम दिया सर। तो इंशाल्लाह आगे भी वक्त देते रहेंगे जी आपसे। इंशाल्लाह दीन के मामले में आप मुझे जहाँ जिस वक्त बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। जी व्यूअर्स, इस वक्त जो हमारे पास इनकी बुक है वो ये आप अगर देख सकें तो दावत तफक्कुर फिद्दीन, दावत तफक्कुर फिद्दीन, ये बुक आप लाजमी पढ़िएगा। मैंने भी इस्तिफ़ादा हासिल किया है जी कि इनसे और इनकी बुक से, और यकीनन ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं और हमें स्ट्रेंथन करने के लिए हैं, हमें जगाने के लिए हैं। तो वी आर टू डू, वी हैव टू डू नहीं, वी आर टू डू। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे जी। Thank you very much. आपका अपना चैनल टू लॉ हैदर नासिर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया सर। इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।